کا آغاز کریں گے۔ ملک میں فوری انتخابات ممکن نہیں، الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ الیکشن کمیشن کی پنجاب میں انتخابات سے متعلق تفصیلی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ انتخابات 8 اکتوبر سے پہلے ہوئے تو انارکی کا خدشہ ہے۔ ایسے میں الیکشن کمیشن انتخابات کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری انتخابات کا انعقاد اور شفافیت یقینی بنانا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمام انتخابات ایک ساتھ کرانا موضوع قرار دے دیا۔ مزید اس رپورٹ میں پنجاب میں الیکشن کے لیے سیکیورٹی کی فراہمی، انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان نے چیف جسٹس سے چیمبر میں ملاقات کی۔ سپریم کورٹ کے ججز اور سیکرٹری دفاع بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں ملکی سیکیورٹی صورتحال بارے آگاہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں انتخابات کے لیے سیکیورٹی فراہمی پر رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ دیکھیے اسی بارے میں یہ رپورٹ۔ مخالفین کی راتوں کی نیند حرام ہے کہ اتحاد کیوں نہیں ٹوٹا۔ پارلیمنٹ اور عدالت میں جو چل رہا ہے اس پر دنیا حیران ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قانون بننے سے پہلے ہی عدالت نے حکم امتناع دیا ہو۔ ایسے انوکھے فیصلوں سے عدل کے نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ وزیر اعظم کا اتحادی جماعتوں کے اجلاس سے خطاب، کہا IMF سے معاہدہ آخری مراحل میں ہے۔ شہباز شریف نے معاہدے کے لیے کردار ادا کرنے پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور آرمی چیف کی تعریف کی۔ کسی سے مشروط مذاکرات نہیں ہوں گے، حکومتی اتحاد کا دو ٹوک اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادیوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اسی پر بات کریں ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس کیانی، اجلاس میں مزید کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، حکومتی اتحاد نے کسی بھی سیاسی فریق سے مشروط مذاکرات سے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ سیاست میں بات چیت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ حکومتی جو اتحاد کا جو موقف سامنے آیا ہے، آگے بڑھنے کے لیے کسی کو بھی شرائط طے نہیں کرنی چاہیے۔ حکومتی اتحاد کا ملک کی خاطر بے لوث اور بامقصد بات چیت کے عزم کا اظہار بھی ہوا ہے۔ اتحادیوں نے اجلاس میں عمران خان کے رویے کو ہٹ درمی قرار دیا۔ قوم میں نفرتیں پھیلانے والے مذاکرات میں بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ شرکا کے موقف سامنے آیا ہے۔ اتحادیوں کا اقتدار کو 1 سال مکمل ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ چیلنجز اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ قوم کو تنہا نہیں چھوڑنے کا عزم جو ہے ادا کیا گیا ہے۔ عدالتی امور پر بھی اجلاس کو قانونی ٹیم کی تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر معاملات پر جو بلاول بھٹو زرداری کا جو اسپیشل جو چیز سامنے آئی ہے، اس پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے زور دیا ہے مذاکرات پر، لیکن AUIF نے جو ہے اس پہ اپنے ریزرویشن شو کیے ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ کسی طور پر بھی ان سے جو ہے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ اس پہ اسپیشلی طور پر جو وزیر خارجہ کا جو اپوزیشن سے مذاکرات کے معاملے پر جو ہے وہ اصرار جو سامنے آیا ہے، اس میں چھوٹی جماعتیں بھی مذاکرات کے حوالے سے بلاول بھٹو کے موقف کی حامی نظر آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے فیض کیانی، بہت شکریہ آپ کا۔ ثاقب نثار سیاست چمکانے کے لیے چھٹی کے روز بھی عدالت لگاتا تھا۔ ایک شخص روز کہتا تھا کہ 20 ارب شہباز شریف نے کہاں لگائے۔ ثاقب نثار PKLI میں اپنے بھائی کو لگوانا چاہتا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کے دورے کے موقع پر گفتگو، کہا نیازی نیب گٹھ جوڑ نے ایماندار لوگوں کو جیل پہنچایا۔ ایک شخص دن رات کہتا تھا کہ یہ 20 ارب روپے شہباز شریف نے کہاں لگائے، یہ غرق ہو گئے ہیں۔ ان کا نام ہے ثاقب نثار۔ اگر 20 ارب روپے غرق ہو گئے تھے تو آپ تو ہفتے اور اتوار کو بھی اپنی عدالتیں لگایا کرتے تھے۔ بیوہ اور یتیم کو انصاف مہیا کرنے کے لیے نہیں، صرف سیاسی دکان آپ نے چمکا رکھی تھی۔ ثاقب نثار اپنے بھائی کو وہاں پر لگوانا چاہتے تھے، اور جس طرح ڈاکٹر جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہیں، ڈاکٹر قاضی، ان کو آپ عدالت میں بلا کر ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ MQM نے مردم شماری پر ایک بار پھر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کنوینر MQM خالد مقبول کہتے ہیں کراچی اب ایسی پالیسیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کی آبادی منصوبے کے تحت کم گنی جائے۔ شہر کے تمام طبقات اور قومیتوں کو برابر سمجھا جائے۔ دیکھیے شعیب مختار کی رپورٹ۔ مردم شماری پر MQM کے تحفظات برقرار۔ MQM کے سالانہ امدادی پروگرام کی تقریب سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایک فارمولے کے تحت ہمیشہ مردم شماری میں کراچی کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ اس شہر کو درست گننے کی ضرورت ہے۔ 50 سال سے جو طریقہ تھا اس شہر کو گننے کا، ایک فارمولے کے تحت لوگوں کو سروں کو نہیں گنا جاتا تھا، بھرتی کاغذوں پر کسی فارمولے اور کسی پالیسی کے تحت کی جاتی تھی۔
खुदा के लिए इस पॉलिसी को तब्दील कीजिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि एमक्यूएम पाकिस्तान सियासत में सिर्फ खिदमत के क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद के बायस पेंशन से हाथ धोने वाले सरफराज नवाज ने 7 साल अदालती जंग के बाद हथियार फेंक दिए। लेजेंडरी सरफराज नवाज ने गैर मशरूत तौर पर अपना केस वापस लेते हुए आइंदा कभी पीसीबी पर तनकीद न करने की यकीन दहानी करवा दी। मज़ीद जानते हैं 24 न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क अहमद रज़ा से। अहमद रज़ा, सरफराज कभी तनकीद नहीं करेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और लेजेंडरी सरफराज नवाज के दरमियान वो हक की जंग थी जो 7 साल तक जारी रही। सरफराज नवाज जो कि तीखे अपने स्विंग और बॉलिंग से बड़े बड़ों को जो है नाको चैन हुआते थे, जब उनकी बयानबाजी की बात आई तो उस वक्त भी तनकीद के ऐसे नशे चलाते रहे और वो उसको अपना राइट समझते थे। लेकिन पीसीबी का ये कहना था कि अगर आपने पेंशन लेनी है तो उसके लिए आपको खामोश होना पड़ेगा और तालाबंदी करनी पड़ेगी। और इस जंग को जो है अदालती जंग को 7 साल बीत गए और आखिरकार सरफराज नवाज जो कि 74 साल की उम्र में है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, उन्हें जो है हथियार फेंकना पड़े। और अब उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख कर दे दिया है जो है वो मारूफ कानूनदान नईम बुखारी वो बोर्ड में जमा करवा देंगे कि अब वो किसी किस्म की तनकीद नहीं करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि इसके बाद उनकी जो है वो पेंशन जारी हो जाएगी। साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज ने गैर मशरूत तौर पर अपना केस वापस ले लिया है। आगाह करने के लिए शुक्रिया अहमद रज़ा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग में तेजी आ गई। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर रश है। चूड़ियाँ, झुमके, मेहंदी और जूतों के स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बाज़ खवातीन को मैचिंग जूते खरीदने की फिक्र है। इस हवाले से जानेंगे, इस्लामाबाद से हमारे साथ गौहर मसूद मौजूद हैं। गौहर मसूद, क्या हालात हैं वहाँ के बाज़ारों के? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर इस वक्त मैं इस्लामाबाद के F7 जिना सुपर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग अफ्तारी के फ़ौरन बाद से निकलना शुरू हुए और ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन, बच्चे और फैमिलीज़ पूरी की पूरी निकल आई है और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं वहाँ पर वो अपनी जो ईद की तैयारियाँ हैं, ख़ासकर चूड़ियों की तैयारियों में ख़रीदारी में ख़वातीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। और इसी तरह हिना, मेहंदी और कपड़ों की और जूतों की ख़रीदारी जो है वो भी यहाँ पर बड़े ज़ोर शोर के साथ हो रही है। लोग काफ़ी बड़ी तादाद में निकल आ चुके हैं। एक तो मौसम भी इस्लामाबाद का थोड़ा सा खुशगवार है, उसी निस्बत से जब अफ्तारी के बाद लोग बाहर निकलते हैं तो घूमना फिरना भी हो जाते हैं और ईद की शॉपिंग भी हो जाती है। ईद जैसे करीब करीब आ रही है तो ईद की जो शॉपिंग है उसमें ख़ासकर शाम के बाद, अफ्तारी के बाद का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है और लोग बड़े अंदाजे में शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। इस्लामाबाद के जैसे मैंने F7 सेक्टर का जिक्र किया, इस तरह मुख्तलिफ जो मार्केटें हैं, बाज़ारें हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही रश नज़र आ रहा है। जी ठीक है गौहर, साथ ही रहेगा। कराची से इकरा अवान ने भी ज्वाइन किया है। इकरा, आप कौन से बाजार में हैं कराची के और क्या यहाँ पर माहौल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची की गोल्ड मार्क मार्केट में मौजूद हूँ और ईद उल फितर आने में चंद रोज़ बाकी रह। जी गहमा गहमी जो है इस वक्त उरूज पर है। शहरी अपनी अपनी ईद की तैयारियां करने में मसरूफ है। आप मेरे असम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी खासा रश है। कोई अपनी पसंद के सैंडल खरीद रहा है तो कोई कुर्तियाँ खरीद रहा है, क्योंकि ईद आने में चंद रोज बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में टेलर्स हजरात के भी नक्शे आसमानों पर है। तो जो शहरी है वो इसकी सिलेक्शन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तैयार शुदा कपड़े लेके अपनी ईद को खुशगवार बना रहे। गर्मी का मौसम है तो गर्मी को देखते हुए कराची की जो शहरी है, कराची के जो बाकी है, अपनी अपनी खरीदारी करने में मसरूफ है। ठीक है, इकरा अवान कराची से और गौहर मसूद इस्लामाबाद से, दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। ईद का जोड़ा तो ले लिया है, अब बारी है चूड़ियों की। खवातीन ने मुल्तान के मशहूर चूड़ी बाज़ार का रुख कर लिया। मुख्तलिफ अक़साम और डिज़ाइंस की चूड़ियाँ खवातीन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। हमारी नुमाइंदा अलिशबा तफसीलात से आगाह करेंगी। अलिशबा, आगाह कीजिए। और अलिशबा से भी बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ अक़साम की चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए ख़वातीन जैसे कि दीगर बाज़ारों में, दीगर शहरों में भी पहुँची है, तो मुल्तान में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। यहाँ पर मशहूर चूड़ी बाज़ार है जहाँ का रुख किया है ख़वातीन ने। जानेंगे, अलिशबा हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशबा, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, ईद में चंद रोज़ ही बाकी हैं, इसलिए ख़वातीन की जानिब से ईद का जोड़ा तो ले लिया गया है। अपनी मैचिंग चूड़ियाँ लेने के लिए ख़वातीन ने बाज़ारों का रुख किया है। इस वक्त मैं मुल्तान के मशहूर चूड़ी बाज़ार में मौजूद हूँ, चूड़ी गली में मौजूद हूँ, जो कैंट में मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर चूड़ियाँ मौजूद हैं। जो कस्टमर यहाँ पर चूड़ियाँ लेने आई हुई हैं, सबसे पहले उनसे बात कर लेती हैं कि किस किस्म का ईद का सूट लिया है। जी, जैसा कि हम जानते हैं 27 रोज़े हो गए हैं और मैंने लेमन कलर का अपना ईद का ड्रेस लिया है। आज मैं बैंगल्स लेने आई हूँ अपने लिए, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा लूँ। मैचिंग करना तो बहुत ज़रूरी होता है ना, लेकिन अभी मेरे शूज़ भी रहते हैं, मैंने अपने शूज़ भी लेने हैं। जी बिल्कुल, एंड में जो है चूड़ियाँ, मैचिंग ज्वेलरी और शूज़ रह जाते हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको ये चूड़ी गली दिखा सकें तो यहाँ पे चूड़ियों का एक किस्म का मेला लगा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश भी होता है। अमूमन इस चूड़ी गली में लोग दूर दराज से आते हैं। मुल्तान की मशहूर ये चूड़ी गली है। यहाँ पर ख़वातीन की जानिब से आया जाता है और अपनी मनपसंद चूड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी मौजूद है जो यहाँ पे ख़वातीन हैं आती हैं और अपने सूट के साथ की मैचिंग चूड़ियाँ लेकर जाती हैं। ठीक है अलिशबा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ारत दिफा ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का हुक्म दिया जाए। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत किशकोरी से। अमानत, आगाह कीजिए। वज़ारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराए जाएँ और ये बताया गया कि 5 अप्रैल का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट वो वापस ले, क्योंकि मौजूदा जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसमें इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है और अगर इंतखाबात कराए गए तो अनारकी का खतरा है। और ये भी कहा गया कि सिंध और बलूचिस्तान की जो असम्बलियाँ हैं वो भी मुद्दत पूरी कर लें, उसके बाद जो है एक साथ मुल्क में इंतखाबात कराए जाए और सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात कराने का 14 मई का जो फैसला था वो भी वापस लिया जाए। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया आपका। माहौल दोस्त मंसूबा रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम तेज़ी से जारी। ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए रूडा सिटी में 8 जंगलात बनाने का फैसला। CEO रूडा इमरान अमीन ने कहा कि 3 बड़े जबकि 5 छोटे जंगलात बनाए जाएंगे। रूडा सिटी में मजमूई तौर पर 14% ज़मीन पर जंगलात बनाए जाएंगे। 8000 एकड़ ज़मीन पर जंगलात को मेंटेन किया जाएगा, जिसमें फलदार, फूलदार और दीगर तमाम अक़साम के दरख्त लगाए जाएंगे। PHA और महकमा जंगलात के साथ मिलकर तमाम 8000 एकड़ ज़मीन पर जल्द जंगलात बनाए जाएंगे। जंगलात बन जाने से कार्बन क्रेडिट की सूरत में बैनुल-अक़वामी इदारों से फंड्स भी हासिल किए जाएंगे। यहाँ पे 3 हमारे पास बड़े फॉरेस्ट हैं, 5 हमारे पास दरमियाने और छोटे लेवल के फॉरेस्ट हैं। टोटल ये कवर तकरीबन 14% आता है और ये तकरीबन 8000 एकड़ बनता है फॉरेस्ट लैंड जो हमारे पास है। इसके ऊपर अभी तक जो फॉरेस्टेशन हुई है वो हमें जब जिस वक्त मिला था उस वक्त सिर्फ 800 एकड़ या मैक्सिमम 900 एकड़ पे हुई थी। हम इसको अभी तक 1700-1800 एकड़ पे ले गए और अगर हम इंशाल्लाह इस कार्बन क्रेडिट्स को भी यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी एक्सपेक्ट कि हम ये सारे फॉरेस्ट जल्दी डेवलप कर पाएंगे। बिकॉज फॉरेस्ट एक वो वाला एरिया है जो कि अथॉरिटी को अपने फंड्स यूटिलाइज़ करना पड़ रहे हैं टू रीजनरेट दिस विच इज़ क्वाइट स्लो। फिर उसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या PHA के थ्रू जाना पड़ता है वहाँ पे भी, बिकॉज ये दोनों डिपार्टमेंट्स मल्टीपल काम और कर रहे होते हैं तो वहाँ से रिसोर्सेज की बड़ी इशू होती है। तो अगर हम ये कार्बन क्रेडिट्स पे लेके जाएंगे तो एक तो हमारे पास प्राइवेट फर्म्स इसमें आ जाएंगी जो कि बहुत जल्दी हमारे लिए उगा देंगे, बिकॉज जितना क्विक वो उगाएंगे उतना कार्बन क्रेडिट से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स बेचने का प्लान रखते हैं। हमारे पास उसके लिए ऑफर्स भी आ गई हैं और उसके थ्रू ही कार्बन क्रेडिट्स का उनको कुछ ईयर्स हम दे देंगे कार्बन क्रेडिट्स और उसके थ्रू ये फॉरेस्ट हम रीजनरेट करवा देंगे इनसे। ये अगर हम लोग इसको पूरी तरीके से हम लोग जब हम लोग की फुल कैपेसिटी पे ये सब बन जाएंगे तो किस हद तक हम FDI ले सकते हैं इन फॉर्म ऑफ देखिए, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़, वाटर फ्रंट बिजनेसेस पूरी दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ जानी जाती हैं। हमारे पास उसी वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है जब हम उनके लिए एवेन्यूज़ बनाएंगे। हमारे पास अभी जब हम दुबई जा रहे हैं, डिफरेंट जगहों में आगे हमारे UK का प्लान है, वो इसीलिए है कि हमने वो प्रोडक्ट्स बना लिए हैं कि जो हम अभी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह हमारे पास जितनी ज़्यादा हम डेवलपमेंट और प्रोडक्ट्स बाहर मार्केट में ले जाएंगे तो उसके ऊपर ही आपके पास फिर इन्वेस्टमेंट आएगी। उसके साथ ही ये बड़ा ज़रूरी है कि बिज़नेस का ईज़ हो। जो भी आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स आएँ उनको ये पता हो कि यहाँ पे अगर इस अथॉरिटी के साथ हम आएंगे तो हमें डेवलपमेंट भी जल्दी हो जाएगी, यहाँ पे ईज़ ऑफ बिज़नेस भी होगा और हमें रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ों में भी ईज़ होगी। तो उसी फॉर्मूले को देखते हुए हम इंशाल्लाह ये जो अभी प्लान कर रहे हैं इसमें हमारी एवेन्यूज़ हम बढ़ा रहे हैं रोज़ के रोज़, चाहे वो
वेस्ट वाटर की रिवर चैनलाइजेशन, रिवर के ऊपर, वाटर फ्रंट के ऊपर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों, होटल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हों, हेल्थ सिटीज़ हों, मीडिया सिटी हो, ये सारे हम इसलिए बना रहे हैं कि इसी तरह हम इंटरनेशनल ग्रुप्स को लाएंगे जब हम उनको कोई ना कोई एवेन्यू बता सकेंगे, कोई प्रोडक्ट दे सकेंगे। अच्छा सर, ये जो हम निगरान वजीर बराए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बैरिस्टर सैफ असफर अली नासिर का CBD पंजाब और रूडा का दौरा। निगरान वजीर बराए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को CBD पंजाब और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कलबा चौक रीमॉडलिंग, वाल्टन रोड अपग्रेडेशन, रेस्क्यू 1122 और कैंप जेल के बारे में आगाह किया गया। बैरिस्टर सैफ असफर अली नासिर ने कहा कि CBD पंजाब के मंसूबे जिद्दत के हामिल हैं। CBD पंजाब लाहौर और रूडा सूबा पंजाब की तरक्की में निहायत अहम है। मंसूबे लाहौर और पंजाब की तरक्की का मंजरनामा तब्दील कर देंगे। इस मौके पर CBD पंजाब और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO इमरान अमीन, COO ब्रिगेडियर मंसूर जंजुआ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल CBD पंजाब मोहम्मद उमर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी काशिफ कुरैशी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीगल बैरिस्टर बिलाल खोखर भी मौजूद थे।